So children, welcome back again. Let's start today's lesson. Today's date is 17th of April 2021. Day is Saturday. Class is second ABCD. Subject English Literature. Topic is lesson 2 Chuk Chuk. This is the part 2 of the lesson. Yesterday we had done the reading of the lesson and I had explained the lesson that there was a train, very beautiful train, Chuk Chuk. बहुत प्राउडी थी और किसी से बात नहीं करना चाहती थी, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी उसके साथ और बाकी टॉयज थे उनके साथ बिल्कुल बात नहीं करती थी एंड इट वाज वेरी प्राउडी. बट देन एन इंसिडेंट हैपेंड, सारे के सारे टॉयज ने उसकी हेल्प की एंड व्हेन द चुक चुक सॉ द फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेचर ऑफ अदर टॉयज, वो भी बदल गए एंड नाउ इट बिकम्स अ फ्रेंडली, it became friendly with other toys. So I hope you all have understood the lesson. Today we are going to start with the exercise part of the lesson. Okay children, so you have to do the exercises in your book and copy. So first I will tell you the word meanings. Very important thing children, you have to write the word meaning in your copy so that it will be easy for you to find out your work during the exam time. So please write it in your copy. Okay, this is the lesson 2 Chuk Chuk. Word meaning. First word is powerful. Powerful means very strong, very strong. Second, squawked. Squawked means made a loud sharp sound, made a loud sharp sound. Then scratches. Scratches means cuts on the skin, whether with किसी भी चीज़ से लग सकता है, पेड़ से लग सकता है, किसी नुकीली चीज़ से लगता है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैचेस. व्हेन जब आपकी बॉडी के ऊपर कट लग जाते हैं, यू मस्ट हैव सीन, छोटे छोटे कट लग जाते हैं किसी शार्प थिंग से, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैचेस. एवर आफ्टर मीन्स ऑलवेज, हमेशा. ओके, उसके बाद हमेशा, जैसे स्टोरीज में होता है. Now children, I have made some questions for you. You can write the questions so that it will be easy for you to understand the lesson and prepare for your exam also. So first question is, who was Chuk Chuk? Who was Chuk Chuk? So answer is, Chuk Chuk was a red toy train. Chuk Chuk was a red toy train. You can write the answer, question answer in your copy. Okay, then question 2 is, how did Chuk Chuk behave with other toys? Answer is, Chuk Chuk did not try to make friends with other toys. Chuk Chuk did not try to make friends with other toys. Then how did all the toys help Chuk Chuk? किस तरह से बाकी टॉयज ने हेल्प किया चुक चुक को? All the toys brought Chuk Chuk back to the room and cleaned and fixed it. All the toys brought Chuk Chuk back to the room and cleaned and fixed it. Okay, you can write the answer. Okay, again I will repeat. Who was Chuk Chuk? Chuk Chuk was a red toy train. Second, how did Chuk Chuk behave with other toys? Chuk Chuk did not try to make friends with other toys. Chuk Chuk did not try to make friends with other toys. Third, how did all the toys help Chuk Chuk? Answer, all the toys brought Chuk Chuk back to the room and cleaned and fixed it. All the toys brought Chuk Chuk back to the room and cleaned and fixed it. Now we will do the exercises given in the book. So take out your books. First is comprehension, page number 8. Okay. So सर्कल ए और बी फॉर द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के लिए आपको सर्कल करना है ए या बी में से दो ऑप्शन आपको दिए हैं. ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर. आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है. लाइक फर्स्ट वन, चुक चुक वॉज a red train, a red toy train. So answer is a red toy train. Circle B, a red toy train. Second, Chuk Chuk became very proud when it heard A, children praising it, parents praising it. B. So it became very proud when it heard
children praising it. So circle A, children praising it. Third, all the toys in the toy basket were A. rude to Chuk Chuk, B. friendly towards Chuk Chuk. So B. friendly towards Chuk Chuk. Friendly towards Chuk Chuk. Fourth, Chuk Chuk A. did not talk to the toys in the toy basket. B. talked to the toys in the toy basket. So answer is A. did not talk to the toys in the toy basket. Answer circle A. Then fifth, who accidentally kicked Chuk Chuk into the bush? A. Rahul or B. Atul. It was Atul. तो राहुल का जो फ्रेंड आया था अतुल, उसने धक्का दिया था चुक चुक को. सो इट वाज अतुल बी. एंड लास्ट इज हु लुक्ड फॉर द टॉय ट्रेन एंड ब्रॉट इट बैक इनटू राहुल्स रूम? ए. ऑल द टॉयज और सिर्फ टेडी और सिमसिम. सिर्फ टेडी और सिमसिम लाए थे कि सारे टॉयज मिलके लाए थे? सारे टॉयज लाए थे. सो ए. ऑल द टॉयज. All the toys A. Okay. Now come to the next part. Who said what? You have to write the names of the toys or person who said the following sentences. जिसने भी ये बोला उसको आपको लिखना है. तो first is, what a beautiful toy train. Look how quickly it moves on the railway track. किसने बोली थी ये बात? Children. So सारे children जब भी toy train को देखते थे ये बात बोलते थे. So children. B. Will you give us a ride, Chuk Chuk? Who said it? Mithu the parrot. Mithu the parrot. Third, Mithu, it's true what you say, but I think Chuk Chuk is in trouble. We must help it. तो किसने ये बात कही थी? Teddy. So write down Teddy. Okay. ये बात टेडी ने कही थी ना जब मिठू उसकी बुराई कर रहा था कि वो उससे बात नहीं करते और उसके साथ रूड रहते, तो हमको उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए जहाँ पे भी हो. रात को जब खो गया था चुक चुक. सो टेडी सेड इट टू मिठू. देन फोर्थ, आई एम सॉरी आई वॉज रूड टू ऑल ऑफ यू. विल यू बी माई फ्रेंड्स? हु सेड इट इन द एंड? चुक चुक. राइट डाउन चुक चुक. चुक चुक सबके साथ अच्छा हो गया था जब. Now there is a vocabulary part. I am going to do the first exercise only for you. ठीक है. Alphabetical order. अब अल्फ़ाबेट सबको पता है क्या होता है. अल्फ़ाबेट A to Z आर अल्फ़ाबेट, और आपको पता है हर एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हर एक लेटर का एक प्लेस होता है. जैसे A फर्स्ट प्लेस पे, B सेकंड प्लेस पे है, C थर्ड प्लेस पे है. तो इस टाइप से जब अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यानी कि C जो है वो कभी भी B से पहले नहीं आता है. ठीक है. जैसे आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा ना, C हमेशा B के बाद आता है, D हमेशा C के बाद आता है. सो ये होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, द वे ABCD आर अरेंज इन द टेबल. नाउ रीड द फॉलोइंग लेटर्स एंड वर्ड्स. B, G, I, T, Y. NA, NE, NL, NO, NR. SAD, SAG, SAP, SAT, SAW. Now in first, G comes after B, I come after G, then T come after I and Y come after T. देखा आपने सब कैसे अरेंज है अल्फ़ाबेटिकल. G B के बाद आया, I जो है वो G के बाद आया, T जो है वो I के बाद आया, Y जो है वो T के बाद आया. तो ये अगर आप अल्फ़ाबेट A to Z भी देखें तो भी यही होता है. जो G होता है वो B के बाद ही आता है. पहले B आएगा, फिर G आएगा, फिर उसके बाद I आता है, उसके बाद T आता है, उसके बाद Y आता है. इसी टाइप से आपके अल्फ़ाबेट में होता है. सेम वे N यहाँ पे सबके साथ कॉमन है, तो हम इसलिए सेकेंड लेटर को देख रहे हैं. A पहले आया, फिर E पहले बाद में आया, फिर L आया, फिर O आया, फिर R आया. लाइक N स्टार्ट्स विद एवरी यूनिट. N सबके साथ है. NE कम्स आफ्टर NA. NE जो है वो NA के बाद आया. देन NL जो है वो NE के बाद आया. NO जो है वो NL के बाद आया. NR जो है वो NO के बाद आया. वाई? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा E जो है वो A के बाद आता है अल्फ़ाबेट में, इसीलिए. ठीक है. E कम्स आफ्टर A.
सेम वे SAD, अब यहाँ पे ऐसे सबके साथ कॉमन हो रहा है, लेकिन थर्ड वाला लेटर चेंज हो जा रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पे थर्ड लेटर को देखेंगे, लाइक SAD, SAG, SAP, SAT, SAW। तो यहाँ पे G जो है वो D के बाद आ रहा है, P जो है G के बाद आ रहा है, T जो है P के बाद आता है, एंड W T के बाद। वाई? क्योंकि इसी टाइप से ये हमारे अल्फ़ाबेट में होता है। तो अब हमको जो ये दिए गए एक्सरसाइज, इसमें हमको इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, L C T R F। तो हमारे अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? C के बाद आता है F के बाद L के बाद R के बाद T। ओके, सेम वे यू विल अरेंज। देन UMZWN। सो यहाँ पे हमको, अब यहाँ पे ABCD नहीं दी है, M से शुरू किया है, तो वी विल गो टू द M N U W Z, MNUWZ। BAT BAT, BAG, BACK, BASH, BALD। यहाँ पे BA सब में कॉमन है, इसलिए हम थर्ड वाले लेटर को चेक करेंगे। सो BAC, C जो है वो बाकी सबसे पहले आता है, C सबसे छोटा है, तो हम लोग BAC के बैग पहले लिखेंगे, फिर BAG बैग, फिर BALD बॉल, BASH बैश और BAT बैट। क्यों? क्योंकि C जो है वो G से पहले आता है, L जो है वो G के बाद आता है, सेम वे S जो है वो L के भी बाद आता है, और T जो है वो S के बाद आता है अल्फ़ाबेट में। ABCD आप बोलते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू। देन स्पोक, बॉट, वेटेड, पाउंस, फॉरगेट। अब यहाँ पे बड़े बड़े हैं, लेकिन ये आपने देखा सबका फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर सिर्फ चेक करेंगे। फर्स्ट लेटर में सबसे छोटा आया हमारे पास B, तो बॉट हम लोग लिख देंगे। देन उससे बड़ा आया लेटर F, फॉरगॉट, देन पाउंस्ड, देन स्पोक, देन वेटेड। सबका फर्स्ट लेटर देखेंगे, B जो है वो F से पहले आता है, P जो है वो F के बाद आता है, सेम वे S जो है वो P के बाद आता है, W जो है वो S के बाद आता है। देन फ्रिल, फ्रॉन, फ्राई, फ्राइड, फ्राई। अब यहाँ पे FR सब में कॉमन है, सो थर्ड लेटर यू विल चेक। थर्ड लेटर में आप I O Y G देन R, सॉरी यहाँ पे FIRE फायर दिया है, FRIE नहीं है, सो इसलिए हमारे पास I जो है सबसे पहले सबसे छोटा आया, R से पहले आता I, इसलिए फायर को हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर बाकी चारों के हम चेक करेंगे, सब में FR कॉमन है। अब यहाँ पे हम सबसे छोटा देख रहे हैं, फ्राइट, FRIG, यहाँ पे सबसे छोटा है तो हम सबसे पहले G लिखेंगे। देन I, फ्रिल, फिर हमारे पास क्या आया, FRO, एफ्रॉन, देन Y सबसे देर में आता है अल्फ़ाबेट में, सो FRY, फ्राई। नागपुर, दिल्ली, शिमला, अंबाला, पुणे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेटर देखेंगे। फर्स्ट लेटर सबके डिफरेंट है, सो इसलिए हम लोग ईजिली इसको अब अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले A से शुरू होने वाला अंबाला, फिर D दिल्ली, देन N नागपुर, देन P पुणे, and last one should be Shimla S. Okay, so I hope you all have understood how to arrange in alphabetical order. We are going to cover this alphabetical order in our language also, so there I will explain it in more detail. So this is all for today. Thank you.